Hello, friends. Namaste. A very warm welcome to Ansarkari. And today, a very important session on understanding how one can write ethics case studies and also understand in even real life. That is what we are trying to discuss over here. Without any kind of superficial, without any kind of complex vocabulary, we will just try to rush through, go through whatever is being done so that you can replicate. कहते हैं अपने हाथ से किया हुआ काम वही सफलता की तरफ लेके जाता है एंड दैट इज व्हाट इज वन ऑफ द मोटिव्स. As the DM of X City, you are responsible for overseeing the construction of a new metro depot in urban forest area, which is critical infrastructure project aimed at improving public transportation and reducing traffic congestion and air pollution. The project, however, required the clearance of substantial portion of forest, which has triggered strong opposition from environment activists, local residents, NGOs. The forest is widely regarded as the essential for city's ecological balance, often referred to as city slum. तो ऐसा पढ़ के भी आपको आराम से पता लग जाएगा कि आपने पहले भी न्यूज़ के अंदर ऐसा पढ़ा है, तो फिर एकदम से आपको रिलैक्स नहीं होना है, बल्कि थोड़ा सावधान रहना है कि आखिर ये मांग क्या रहा है. In addition to the environmental conditions, you are under pressure from politicians and the state to expedite the project given the upcoming election in 2 years. Political leadership emphasizes the benefits of the metro project for the city's development, its potential to garner electoral support. The project is expected to significantly reduce travel time for thousands of commuters and potentially decrease overall vehicle emissions in the city. However, it would also lead to loss of thousands of trees and disrupt local ecosystems. Are you prepared to make a decision? You are aware that your choice will have far-reaching consequences for both city's development and its environment. तो पहली बात तो ये है कि बीइंग एन ऑफिसर आप तो मतलब जो चाहिए तो आप डिसीजन लेने को तो तैयार होते ही हैं और होना भी चाहिए. ये एक आइडियल पोजीशन है. Identify ethical dilemmas. Evaluate the options available in the above situation. Which of these would you choose and why? Suggest why measures that could be implemented to balance urban development needs with the environmental conservation in future projects. So let's see step by step. The case study is witnessed in real life as debate between growth versus development in like Silver Line project protest in Kerala. और आप वो अर्रे फॉरेस्ट था उसकी भी बात हो सकती है कि एक ग्रुप चाहता था कि वो फॉरेस्ट कटे, एक ग्रुप चाहता है कि बाद में उसको बनाए. तो बस ठीक है. देन नॉट एन एक्सक्यूज. एथिकल डिलेमास क्या है? प्लान्ड अर्बनाइजेशन थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट इन अपोजिशन टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट. ओके. Maintain political neutrality to take fair decision using emotional intelligence. Environmental stewardship, that is urban forest clearance and cost benefit analysis of the decision. Options available क्या है? Option 1, stall the project due to forest loss. Merit ये है कि environment protection and fulfill fundamental duty. Stop the protest and gain public trust. Other factors like traffic jams, transport emissions will deteriorate even quality of life. आपकी जो शहर की जो इकोनॉमी होती है, जो उसका पर कैपिटा इनकम है, जीडीपी है, वो भी पीछे हो जाएगा. और आप अपने लिए नहीं बना रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट आप फ्यूचर जनरेशन के लिए बना रहे हैं. तो वो एलिमेंट बहुत जरूरी है. जरूरी नहीं है कि आज दिल्ली में पोल्यूशन है तो 20 साल बाद भी यही पोल्यूशन होगा. इट्स नॉट द पॉइंट. द पॉइंट इसकी जो आज है उसके बाद हम आगे उसको ठीक कैसे कर सकते हैं. ऑप्शन 2, इग्नोर प्रोटेस्ट एंड अप्रूव द मेट्रो प्रोजेक्ट इन द प्रेजेंट फॉर्म. मेरिट है इसके कि इंक्रीज ईज ऑफ ट्रेवल फॉर सिटीजंस, फॉरेस्ट लॉस एंड अनअकाउंटेड फॉर, garner praise from political circles or political class. In longer run, worse climate change due to deforestation. Option 3 है reorder of project environment impact assessment and look for alternative route for the metro depot. Constitutional duty is upheld by setting a precedent. Moral obligations है virtue ethics upheld, compassion, conscience, stop protest, resolve dilemma, upset the political class. और उसके बाद एक पॉइंट से पहले वाला इसमें है कि might delay the project. चलिए आगे. I would go and choose option 3 to relook into the project plan and order scientific reassessment with the aid of Center for Science and Environment and NGT. I'll ensure the environment conservation is ensured in tandem with planned growth and urbanization. No haphazard decision is taken that ensures no haphazard decision is taken that ensures. Okay, we language is a little complex. We can say correct. No haphazard decision is taken so that uh, integrity and fair decision is based on facts. Okay, fine. Whatever you're trying to say is correct, but then I was just trying to make sense with the language. Measures to balance urban development needs and environment conservation. Campa Fund to ensure speedy and effective implementation, fulfilling objectives of environmental justice. Innovative methods like Miyawaki forestation technique to fulfill the loss of trees in short time. CSR funds to be invested in the green future. Transplanting the trees instead of cutting them to lose trees capital. आप local NGOs और civil society को भी आप ले सकते हैं साथ में. Following green construction techniques and engineering fulfilling twin objectives, the life of trees and their
फ्लोरिशिंग ग्रोथ इज द ओनली गारंटी फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ रेदर देन मॉनेटरी ग्रोथ अलोन। हाँ, कंक्लूजन थोड़ा सा लेस इमोशनल हो सकता था, बाकी आई थिंक वेरी वेल रिटन। और अब इसको हम देख लेते हैं। द गिवन केस स्टडी रिमाइंड्स ऑफ द सेव अर्रे मूवमेंट एज आई जस्ट सेड टू प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट ऑफ द सिटी। पर आपने सिल्वर बुलेट का बोला, वो भी ठीक है, चलिए। द मॉडर्न डेवलपमेंट नीड्स टू हैव बीन क्लीनिंग चेजिंग क्लैशिंग विद द नेचर। तो स्टेक होल्डर्स देखिए कैसे बनाए, हमें स्टेक होल्डर्स हमें ही बनाने चाहिए थे। सिविल सर्वेंट है, पीपल ऑफ द सिटी है, फॉरेस्ट है, और पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है। एथिकल डिलेमास क्या है, डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन, आपने भी वही लिखा। लेकिन मैंने कल भी समझाया था कि आप एक कोट लेके आ सकते हैं, आप एक स्टेटमेंट दे सकते हो, उससे आपका इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है। देयर इज अ नीड टू बैलेंस नीड्स ऑफ बोथ मेट्रो एंड ट्रीज। तो इन्होंने बोला अब इन्होंने जो है यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर उन्होंने सोशियोलॉजिकल एंड पॉलिटिकल साइंस का जो कॉन्सेप्ट है, डियोंटोलॉजी वर्सेस यूटिलिटेरियनिज्म। द राइट मीन्स रिक्वायर प्रोजेक्ट डिले बट मेट्रो प्रोजेक्ट विल बेनिफिट होल सिटी। The pressure from the political executive to expedite the project leaves little room elbow, and environmental NGOs have highlighted the case and hence it will be under scrutiny. So need to uphold ethics. तो आपने भी लिखा, लेकिन थोड़ा सा और सिंपल हो सकता है। प्रोटेक्टिंग कार्बन सिंक्स, ये वाला पॉइंट हमने मिस किया। वर्सेस सॉल्विंग द लार्ज प्रॉब्लम ऑफ ट्रैफिक कंजेशन पोजेस अ डिलेमा। कार्बन सिंक की बात तो है, ये एक अच्छा वर्ड आया, लेकिन हमने भी जो है बताया कि उसमें आपने कोई कमी नहीं है, बस थोड़ा सा सिंपल हो सकता है वो। एथिकल ऑप्शंस अवेलेबल, अलाउ द प्रोजेक्ट एज प्रपोज्ड, कर्ब द प्रोटेस्ट यूजिंग फोर्स एंड क्विकली एग्जीक्यूट द वर्क। प्रोज क्या है, लीडिंग बेनिफिट टू सिटी एज मेट्रो कम्स। इलेक्शन इलेक्शन की बात आपने नहीं की, इन्होंने कहा इलेक्शन बेनिफिट्स टू द रूलिंग पार्टी। वायलेशन ऑफ एनवायरमेंटल एथिक्स, वर्ड अच्छा है। एनिमल विल बी डिस्प्लेस्ड एंड क्राइसिस ऑफ कंसाइंस, अगेन यहाँ पे वर्ड आया। विदाउट ड्यू प्रोसेस, ये विदाउट ड्यू प्रोसेस और क्राइसिस ऑफ कंसाइंस जो है ये हम ला सकते हैं। टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट कमिटी, ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। इंटीग्रेट द ईआईए नॉर्म्स, हमने भी यही बोला। कन्विंस कन्विंस द एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ऑफ ड्यू प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। एंड रीअश्योर पॉलिटिशियन टाइमली कंप्लीशन। प्रोज क्या होंगे इसके, अपहोल्ड हो जाएगा फॉरेस्ट राइट, राइट टू क्लीन एयर भी मिलेगा, प्रोजेक्ट ऑल्सो गेट कंप्लीटेड, fall fill on right it will follow the right means and it will inner peace will be upheld। और उसमें से नेगेटिव क्या आता है कि भाई हो सकता है कि उसके प्रपोजल को आप अगर आप देखिए, ऊपर लाइए थोड़ा सा, पॉलिटिक्स पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में रिफ्यूज द प्रपोजल, सही बात है अगर आप ऐसा करते हैं। और रिड्यूस एक्सटेंट ऑफ मेट्रो। जस्टिफिकेशन क्या है कि इंडियन फिलोसफी इट इज सैड प्रकृति रक्षति रक्षतः। देखिए आ गया एक और। Hence, it is important to conserve nature along with development. It helps us achieve lok sangrah along with proper health of forest. Also, following EIA and due consultation upwards, participatory democracy is also a key word. Measures to balance development with environmental conservation, compulsory EIA हमने भी बोला। लार्ज स्केल प्रोजेक्ट्स पे अपहोल्ड ड्यू प्रोसेस, आर्टिकल 48 है। इनोवेटिव मेथड्स, जैसे आपने मियावाकी बोला। नासिक पीडब्ल्यूडी, अब इन्होंने नासिक का बताया, नासिक ने पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने इफोरेस्टेशन किया, तो आपका एग्जांपल बहुत अच्छा है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनसेटरी, हमने भी ये बोला। नगर वन स्कीम हमने नहीं बोला। फॉलो रवि चोपड़ा कमेटी रिकमेंडेशन, हमें भी कुछ लेके आना चाहिए था ऐसे ही। हर हम वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया बोल देते, फॉरेस्ट सर्विस इंस्टीट्यूट बोल दो, या कुछ भी लिख दो। हार्मोनियस डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट ओवर ब्रिजेज इन वाइल्ड लाइफ। तो इन्होंने भी आंसर को, तो मैं ये कहूंगा कि इन्होंने जो इतना कोई अच्छा, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ही कंक्रीट जवाब दे दिया, हमने भी उसी तरीके से किया कि हमने भी यही बोला कि या तो वहाँ करेंगे, या तो वहीं करो, या नहीं करो, और या फिर एक अल्टरनेट करो। तो इन्होंने भी जो तीसरा पॉइंट बोला, अगर हम देखते हैं उसको दोबारा, तो जब उन्होंने ये बोला, ऊपर अगर हम लेके आते हैं इसको, तो हम बोलते हैं, ऊपर आइए और ऊपर आइए और ऊपर आइए। ये थर्ड पॉइंट हमने भी किया, और ऊपर आइए और ऊपर आइए। मतलब नीचे चलिए भाई, कुछ भी समझ लीजिए। अरे ऊपर चलाओ मेरे मालिक। जो पढ़ चुके हैं वो पेज में दोबारा देखना चाहता हूँ। अब देखिए, टू कॉन्स्टिट्यूट स्टेट कमेटी एंड इंटीग्रेट द ईआईए नॉर्म्स। तो हमने भी इसको ऐसे नहीं पुटअप किया, हमने भी पुटअप किया कि हमने बल्कि ऑप्शन दिया कि कहीं और कर लीजिए। तो उसमें सिर्फ एक हम्म। दो फॉर्मल टर्म्स इन्होंने ऐड किए और कुछ नहीं। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ethical case study, please. Dr. Mehta is a senior drug developer at a leading pharmaceutical company in India, renowned for producing medications including life-saving drugs critical for treating chronic and rare diseases. Since its inception, the company has emphasized the quality and affordability of its drugs. तो ये एक इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी की बात हो रही है, इंडिया हब भी है फार्मास्यूटिकल का।
फिर उन्होंने साथ में बोला रिसेंटली रिसेंटली इन्होंने बोला कि अंडर रिवाइज्ड गवर्नमेंट गाइडलाइंस pharmaceutical companies are required to market a finished product only after obtaining statutory results from tests on the ingredients. Okay. Additionally, they must retain sufficient quantity of samples of both intermediate and final products to allow repeated test of verification of a batch. Dr. Mehta's team is in final stages of development, developing a new medication for a rare but life-threatening disease. The drug has shown promising results in clinical trials. There have been unresolved concerns about the long-term side effects observed in a small percentage of subjects. Despite this, the company has not released any major drug pass in the last decade, leading to significant pressure from the board members to expedite the drug release. अब स्टेक होल्डर बताने हैं एथिकल क्या डिलीमास फेस कर रहे हैं डॉक्टर मेहरा या इश्यूज क्या हैं और ऑप्शन डॉक्टर मेहरा के पास क्या है और आप क्या चूज करें। तो हम जब देखते हैं इसको आंसर को तो केस स्टडी हमने बात की केस स्टडी जो है दिस केस स्टडी शोकेसेस इंपॉर्टेंस ऑफ मेडिकल एथिक्स ऑफ सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी टू अपहोल्ड अकाउंटेबिलिटी एज रिफ्लेक्टेड थ्रू हिप्पोक्रेट्स आइडिया। बिल्कुल सही बात है। तो आप साथ में कह भी सकते हो कि यू नो सिंपल से सिंपल अगर आपको लिखना है तो आप कह सकते हो कि चुरुक चारक थे सुश्रुत थे इवन हमारे जो आयुर्वेद है उसमें भी आपको डॉक्टर को भगवान माना गया है देवता तुल्य माना जाता है। धरती पर यदि कोई भगवान है तो वो डॉक्टर है एज सिंपल एज दैट। सो इट इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग डॉक्टर मेहरा एंड हिज टीम फार्मा कंपनी रेगुलेटर सीडीसीओ दैट सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड बिल्कुल सही बोला लॉ मेकर है बोर्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ कंपनी है सेलर्स ऑफ ड्रग्स हैं और आप साथ साथ में साथ साथ में फार्मास्यूटिकल फार्मास्यूटिकल जो हमारी अथॉरिटी है एक्सपोर्ट बॉडी है फार्मास्यूटिकल की एक एक्सपोर्ट बॉडी भी है वो भी स्टेक होल्डर हो जाती है। वो भी आप लेके आ सकते हैं क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी है। एथिकल इश्यूज फेस बाय डॉक्टर मेहरा आपने पहले बताया टू मिसयूज हिज रेपुटेशन टू एक्सपेडिट द क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर फाइनल अप्रूवल अंडर बोर्ड्स प्रेशर। ये पहला प्रेशर है कि मैं उसको जल्दी करूं। वेट फॉर फाइनल अप्रूवल बाय रेगुलेटर टू इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ। रीफॉर्मुलेट देम फॉर मेडिसिन टू रिमूव लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ पेशेंट्स। तो ये एथिकल डिलेमा यही है कि डॉक्टर मेहरा के जो आपने बोले कि भाई वो अगर उसको अभी करते हैं तो क्या होगा नहीं करते हैं तो क्या होगा लॉन्ग टर्म में करेंगे तो क्या होगा। ऑप्शंस अवेलेबल की जो आपने बात की एक्सपेडाइट द प्रोसेस टू रिलीज द ड्रग इन द मेरिट सही बात है। उसको मेरिट से करिए आप तरीके से करिए इंश्योर ट्रीटमेंट शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स ओनली लाइक प्रॉफिट्स एंड गुडविल वो दे आर नॉट सस्टेनेबल फॉर द कंपनी। डीमेरिट ये सेफ्टी कैन गेट कॉम्प्रोमाइज अगर बहुत जल्दी में करेंगे तो क्रिएट थ्रेट एंड चांसेस ऑफ विड्रॉल ऑफ मेडिकल लाइसेंस गलत करेंगे तो हो सकता है। ऑप्शन टू है रीस्टार्ट द मेडिसिन इन कंप्लाइंग विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डॉक्टर वर्शिप लाइक गॉड जैसे आपने बोला भी है लीगल ऑब्लिगेशंस might prolong availability of drug safety is compromised. Option 2 should be chosen because क्या लिखा आपने life of patients is prioritized unlike the allegations during Indian cuff slip taxation are leading to deaths abiding with the law stakeholder capitalism and ethical leadership बहुत अच्छी लैंग्वेज है ठीक है और ज्यादा हाई हो जाएगी। Medicine is not used as means to achieve the end of earning profits by the company. Quality of medicine is supreme. Therefore it will rather encourage participation by most startups moving towards ये बहुत अच्छा पॉइंट है SDG 3 and uphold the very आगे चलिए existence of medical profession to save and secure the lives of all। लेकिन जब आप ये बताते हैं कि एक्सपेडाइट कीजिए उसको और जल्दी से तो आप बोलिए कि इंडिया के पास ऑलरेडी इतना एक्सपर्टीज है। इंडिया ने कोविड के टाइम पर भी बहुत कम समय के अंदर मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाके हमने वैक्सीन रेडी कर दी। तो अगर कंपनी बहुत बड़ी फर्म है तो सरकार से भी मदद मांग सकती है। सरकार का है R&D है आप कह सकते हो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है आप लेके आइए सब कुछ। जब इतना ही लाइफ सेविंग है और वो कुछ चमत्कार कर रहे हैं तो सरकार भी उसकी मदद करने के लिए आएगी और साथ में जो है आपके पास ऑप्शन ज्यादा होंगे। बस आप थोड़ा सा वो कर सकते हैं और एक आधा कोट और थीम डाल सकते हैं। This case highlights the medical ethics whereas means need to proper as it ठीक बात है आपने आपने ठीक लिखा है। आपकी लैंग्वेज ज्यादा ब्रॉड है बल्कि। अब देखिए यहाँ इन्होंने बोला मेहरा हो गए कंपनी हो गई शेयर होल्डर हो गए लार्जर पब्लिक हो गया गवर्नमेंट हो गया तो ट्रायल। अब पता लगता है कि जब स्टूडेंट या कोई भी ऐसे बहुत जल्दी लिखेगा तो लैंग्वेज चेंज हो जाएगी। लैंग्वेज आप सेकंड लेयर पे नहीं लेके आ पाते जब आप बहुत जल्दी में चाहते हो क्योंकि सेकंड लेयर लाने के लिए कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ज्यादा चाहिए। एथिकल इश्यूज क्या फेस है प्रेशर ऑफ बोर्ड टू रिलीज द ड्रग हाईलाइट द प्रॉफिटेबिलिटी वर्सेस हेल्थ डिलेमा। Unchecked and unsafe release may lead to prosecution by the government and tarnish the image right of stakeholders through
you know, right of the stakeholders who have invested in the company as they may lose wealth. कलेक्टिव गुड, देखिए अभी इन्होंने एक वर्ड यहाँ पे जैसे दिया, यू नो, ग्रीक टर्म है, दिस इज सममम बोनम, कलेक्टिव गुड वायलेटेड इफ ड्रग्स रिलीज्ड एंड मे कॉज लाइफ लॉस एज कफ सिरप आपने भी बताया. पर्सनल वैल्यूज ऑफ डॉक्टर मेहरा, हिज Hippocrates oath is at stake. Trial subject through though have signed contract to be protected from further side effects. Option available है डॉक्टर मेहरा के लिए. Under the pressure of board, he can release the drugs and change the samples before and after. Pros क्या है? It will lead to profitability. Companies as first major drug is released, it may lead to Dr. Mehra's personal growth. Cons वही है, violating medical ethics, drug can lead to life loss, man not as ends violates कांत को इन्होंने लेके आए इन्होंने. इट विल आल्सो ब्रेक द गवर्नमेंट ट्रस्ट एंड मे फेस परसिक्यूशन. आप यहाँ पर कंसाइंस की बात ये नहीं लेके आए, आप लेके आ सकते थे गीता, लिख सकते थे आप गीता, मतलब dilemma गीता helps in solving dilemma, tarnish the image of the country, crisis of conscience for Dr. Mehra. Other option is to convince the company to delay the release, publish white paper and its side effects, and then negotiate with the government to let the drug release with advisory, as I told you. Rules इसमें भी इन्होंने बताया, uphold the profitability of the company, advisory will lead to use by unawareness and curbing reaction, avoids avoids knower doer split. Transparency is upheld, trust of stakeholders in Dr. Mehta's Hippocrates oath is protected. Justification and greed is one of the gates to hell. देखो, as per Bhagavad Gita, खुद ही लिख दिया. Since due process need to be followed, uphold collective interest. Dr. Mehra also needs to uphold his duty as citizen and a doctor. Let his conscience guide him toward the best action. I think we have also taken up the same route and we have also tried to write, but then a little bit more, I would say, more uh, material is over here. Otherwise, I think we are definitely moving in the same direction and we are putting our own ideas, and that showcases our hard work and also consistency. You have been appointed as the Undersecretary in the State Urban Development Department. The department has been tasked with the prestigious project aimed at revitalizing the infrastructure of a city with deep historical significance. The project, which you are extremely passionate about, involves modernizing public transportation, restoring heritage buildings, creating green spaces, and preserving the city's cultural essence. Excited by the opportunity, you spent weeks researching and drafting a comprehensive proposal. You plan include innovative ideas for sustainable development, community engagement, and leveraging technology for urban planning. You presented these initial plans in departmental meeting, hope to inspire your colleagues to kickstart the project. However, your enthusiasm is met with indifference. Your colleagues showed little interest, failing to contribute ideas or even efforts towards the project. Concerned, you reported this lack of enthusiasm to your immediate superior, who is also the authority of the project. To your dismay, he also seemed equally indifferent, casually mentioning that he is set to retire in 6 months and the project has a long gestation period. Determined to see the project succeed, you took it upon yourself to drive forward. For the last 2 months, you have been working more than 12 hours a day, often late into night. ये तो 2 महीने बोल रहा है, हमें तो 2 साल से ज्यादा हो गया. Sacrificing time with your family, your dedication is driven by your belief in the project's potential to transform the lives of the city's region and preserve its rich heritage for future generations. 2 months into the project, a review meeting held by Chief Secretary. During the meeting, department heads from various sectors are present, discuss ongoing and upcoming project. When it is time to present the urban revitalization project, your boss stands up. To your shock, he presents a draft proposal. Your draft proposal has his own work, taking all credit for the innovative ideas and comprehensive planning. As you sit there listening to the superior claim to have worked hard as his own, you feel a mix of anger, disappointment, and demoralization. This incident not only undermines your effort but also leaves you questioning the values of dedication in a work culture that does not seem to support collaboration or recognize individual contributions. अब एथिकल इश्यूज बताइए, वर्क कल्चर कैसे आपको मोरल और प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट करेगा, व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल, हाउ वुड यू एड्रेस द सिचुएशन. तो सबसे पहले, द केस स्टडी हाईलाइट्स द इंस्टेंसेस ऑफ पुअर वर्क कल्चर एंड गैप्स इन द कोलैबोरेटिव टीम वर्क. आपने बिल्कुल सही बोला, लेकिन आप कह सकते थे सरकारी, क्योंकि आप अंडर सेक्रेटरी हो, तो आप कहते कि दिस केस स्टडी हाईलाइट्स, वही वाली जिसकी आपने बात कही है, ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर, या फिर जो आप बात करते कि यू नो नॉन प्रोग्रेसिव ब्यूरोक्रेटिक वर्क कल्चर, या फिर जिसके हम कहते हैं सीलोज ऑफ ब्यूरोक्रेसी, ये वो एग्जांपल है. तो आपको कुछ ऐसा लेके आना चाहिए था, लाल फीता शाही जिसको हम कहते हैं, ये जिसको आप कहिए कि बाबू बन गए तो हिलने की जरूरत नहीं. To leave the dedication behind as no one is enthusiastic, take the business as usual and approach like others. सबसे पहले आपने बोला है कि एथिकल इश्यूज में, सबसे पहले एथिकल इश्यूज में तो ये है कि एथिकल इश्यूज आपने बोला, तो सबसे पहले एथिकल इश्यूज इसमें ये है कि जो कंडक्ट होना चाहिए, जो ट्रेनिंग में आपको सिखाया गया है, जो आपका
जो आपका कंडक्ट है, सर्विस का जो कंडक्ट है, मैं उसको फॉलो करूँ कि नहीं करूँ। सबसे बड़ा डिलेमा तो यही है, कंडक्ट का डिलेमा। डेडिकेशन नहीं कोई दिखा रहा हो तो आप कॉर्पोरेट कल्चर की तरह लिख सकते हैं। दूसरा आपका डिलेमा है कि बिल्कुल सही कहा आपने, टू कन्फ्रंट विद सीनियर और फॉल्सली टेकिंग क्रेडिट और कीप वर्किंग हार्ड एज बीन डन बिफोर। कर्मा फिलोसफी, तो कर्मा तो नहीं है सिर्फ ये, कर्मा फिलोसफी तो ये होती है जिसमें आपको मतलब आप इच्छा रहित कार्य करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो गलत भी हो रहा है ना। सो द सीनियर इज शोइंग यूर वर्क एज हिज वर्क, सो कन्फ्रंट करने की बात एक डिलेमा है कि मैं उनसे कैसे उनसे बात करूँ, या हाउ द होल वर्क सिनेरियो कैन बी चेंज्ड। तीसरा है मोटिवेट द टीम मेंबर्स बाय एलोकेटिंग स्मॉल टॉक्स एंड रिवार्ड फॉर शेयरिंग इनोवेटिव आइडियाज एंड देन क्रिएटिंग सच एन एटमॉस्फेयर कि सीनियर जो है अपने आप ही आपके काम को अपना काम ना दिखा पाए। आप काम इतना कर दीजिए कि दूसरा आदमी अगर ये भी बोलता है कि हमने खुद सब कुछ किया है, तो आपका काम ही इतना सारा हो जाए कि कोई कुछ बोलता रहे लेकिन दिखाई कुछ और देगा। It can affect in two ways. Positive effect motivates the work more harder and changing the mindset team members and senior deontology school. Take individual efforts to reach members to encourage participation. Negative effect ये होगा, shatters the dedication on false claims of the senior not to take extra efforts anymore but will affect the project progress. Deviate from believing the duty as a civil servant in an honest manner. तो ये तो हो ही सकता है, लेकिन ये कोई मतलब ऑप्शन वन आपने फिर बोला, शेयर द ग्रीवेंसेज विद द सीनियर सेपरेटली। वाई सेपरेटली, मतलब यू कैन ब्रिंग इट इन, मतलब चलिए सेपरेटली, तो मतलब आप बात ये है कि पब्लिक की बात आप लेके आइए, जब मीटिंग में बात उठा ही सकते सीनियर might realize the wrong and instead motivate him to participate enthusiastically being last 6 months of his service. Motivate नहीं, he will be remind of whatever his duty is. उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी अथॉरिटी मान के मत करिए, अगर वो गलत भी हैं तब भी आप उनको क्वेश्चन कर सकते हैं ना, तब भी क्वेश्चन मतलब आप उनसे पूछा जाएगा। बिहेवियर अगर सीनियर बिहेवियर का वर्जन होता है तो सरकार उसको डेडवुड की तरह घर बिठा सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स तैयार है इसके लिए, मिशन कर्मयोगी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो आप वो चीजें लेके आइए, प्रगति टूल, यू नो, सेक्रेटरी तक बात जा सकती है, सेक्रेटरी तक बात नहीं हो रही तो चीफ सेक्रेटरी तक चली जाएगी, चीफ सेक्रेटरी भी नहीं मान रहा तो चला जाएगा दिल्ली में कैबिनेट सेक्रेटरी के पास। क्या दिक्कत है उसमें? आपको सब आइडियली लिखना है, कीप वर्किंग विद डेडिकेशन द सेम वे एंड लुक एट पॉजिटिव्स ओनली। तो मेरिट इसका ये कि साइलेंस इज द बेस्ट किलर। अच्छा, सीनियर विल रियलाइज सूनर और लेटर, नहीं सरकारी में ऐसा कुछ नहीं होता। वर्क कल्चर रिमेन्स द सेम, टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द प्रेज ऑफ आइडियाज एंड प्लान। अगर आप चुप रहते हैं तो आपको फिर बाद में रियलाइज होगा कि आप जो सीख सकते थे, आप जो परिवर्तन ला सकते थे, वो आप नहीं ला पाए। यानी आपके अलावा और लोगों के साथ भी यदि ऐसा होगा तो वो भी ऐसा ही करेंगे, और उससे फिर अंत में जो है जनता का जो हित करने की बात है वो नहीं होता। इट इज है, you are also given rights as a person, as a public servant. You are also having a lot of powers and responsibilities. And work culture की जहाँ तक can lead to mental, emotional and physical exhaustion in the long term. It will address the situation by focusing on like karma, upholding the good governance ethos of honesty, dedication, unrelentless devotion to the cause of welfare of all, irrespective of the temporary benefits like earning praise. No, no, no. हमें एंड इस बात को यही करना है कि अगर ये पब्लिक प्रोजेक्ट है और उसके अंदर इतना इंपॉर्टेंट है, पूरा शहर है, उदयपुर की बात मान लो, जयपुर की मान लो, आप जैसलमेर मान लो इसको, आप इसको शिमला मान लो, तो क्या आपको लगता नहीं कि पूरा शहर आपके पीछे खड़ा हो जाएगा? स्टूडेंट्स खड़े हो जाएंगे, टीचर्स खड़े हो जाएंगे, लॉयर्स खड़े हो जाएंगे, अलग अलग आपसे इवनिंग में मीटिंग्स होंगी, तो पब्लिक का प्रोजेक्ट होगा। तो सीनियर अगर मान लो, अगर एक बंद कमरे में वो प्रेजेंट भी करते हैं कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, जनता आपको अपने आप हैप्पी और सोशल मीडिया के ऊपर उसको अपने आप बताकर और आपके साथ इंटरेक्ट करके वो कर देगी। तो आपको इनोवेटिव और होना चाहिए। चलिए आगे। द केस स्टडी हाईलाइटेड, नहीं ये वो नहीं है। द केस स्टडी हाईलाइट्स वन ऑफ द फाइव वोज। अब देखो इन्होंने जो जैनिज्म के 5 वो होते हैं, नॉन स्टीलिंग और अपरिग्रह, अस्ते, उनमें से एक उठा के डाल दिया। पुअर वर्क कल्चर, जैसा मैंने आपको कहा, हाईलाइटेड एज एबीसीडी बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, देख लो। ए से अवॉइड, बी से ब्लॉक, सी से कंफ्यूज, डी से डेविएट।
स्टेक होल्डर कौन है? ऑफिसर है, सुपीरियर है, कलीग्स हैं, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक। चलिए, एथिकल इश्यूज क्या है? पुअर वर्क कल्चर एंड ब्यूरोक्रेटिक एपिथी इज हाईलाइटेड। देखो मैंने आपको बोला, वायलेशन ऑफ ओथ एंड ड्यूटी कर रहे हो आप, इमोरल बिहेवियर है सुपीरियर का, पुअर लीडरशिप है, बैड एथिक्स है, फेम बीइंग प्रायोरिटाइज ओवर ऑनेस्ट वर्क एंड डेडिकेशन अंडरलाइंस द इरोजन ऑफ वैल्यूज इन सिविल सर्विसेज। आईएएस अभिषेक केस, अभी देखो अभिषेक साहब पकड़े गए ना आपके 2 साल पहले, उन्हीं का नाम डाल दिया इन्होंने। अभिषेक सिंह, ये दूसरे अभिषेक सिंह हो जो नाश्ता गाता घूमता था। डिफीट्स द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल सही बात है। ए सुपीरियर विल नॉट वर्क विद द सेम डेडिकेशन, such work culture demotivates the honest and dedicated officer. Such work culture affecting workplace and productivity breeds apathy. कितना अच्छा लाइन है, breeds apathy and regulatory cholesterol. Despite having strong character and dedication, without work of without lack of support, work cannot be done. चलिए, moral is hurt and it leads to reduced public engagement. देखो moral hurt होता है, पब्लिक से कम बात करते हैं, reduce productivity, create such slow culture, मीम बन जाते हैं, है ना। जैसे अब लंच ब्रेक है, बैंकों का बना हुआ है कि भाई हमारा छुट्टी का टाइम हो गया, हमारा लंच का टाइम है, आप कुछ नहीं करेंगे, मीम बनते हैं उसके ऊपर। ऑनेस्ट ऑफिसर्स गेट साइडलाइन और ट्रांसफर्ड, नो कॉमेडियर बिटवीन कलीग्स लेड टू टॉक्सिसिटी। As a upright and emotionally intelligent officer, I will confront my superior, express my discomfort. I will request him to restore the project to its true origin. That is me, to ensure hard work I have put in the actualize on the ground. I would urge my colleagues use persuasion for help me in completion of the project and set incentives for them. Reward theory. This will help infuse situation. The credit does not matter, but implementation need to robust to uphold the trust and social capital in the democracy. So I think 70% we are on track as far as all ideas and uh, mindset is concerned. So Divya, what is your viewpoint? सर, डेंटोलॉजी और जो अदर फिलोसफिकल्स हैं उनके साथ साथ जो भगवत गीता और जैनिज्म के उन सारे पॉइंट्स को भी लेकर आए एक्ट के साथ साथ सर, एग्जांपल्स के। और पूरा आंसर दें, जी सर। आपकी अगर दिव्या बात करूं तब बात दें। जी सर। मानसी, व्हाट इज योर थिंकिंग? सो ये कि रियलिस्टिक ही रहना है केस बिल्कुल। स्टडीज में जो हम लिख रहे हैं, और जो दो तीन यूनिक पॉइंट्स है जो लैंग्वेज यूज हो रही है वो फ्रेजेस में लिख रही हूँ, तो उनको आई रिवाइज। बाकी जो हम एथिक्स के चैप्टर करेंगे वहां से भी कवर हो रहा है। कर ही रहे हैं उससे बिल्कुल। और दूसरा, जैसे मैंने आपसे कहा, कोई जरूरी नहीं है जैसा इन्होंने लिखा कि दुनिया में सभी पढ़ रहे होंगे इसको, हम्म। तो आप अपना, जैसे मैंने बोला, आप कॉन्फिडेंटली लिख सकते हो, उसमें क्या दिक्कत है। कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके बाद मतलब चीफ सेक्रेटरी को आराम से बताया, आज तो सोशल मीडिया है पूरा, हम्म। पब्लिक प्रोजेक्ट हो रहा है, आप जितने विजिट करोगे फिर आपका अपने आप फेमस हो जाओगे आप। और फेमस होना हाँ ही क्यों है? काम करना है यार। जी। फेमस होना है तो फिल्म स्टार बनिए, सीधी बात, आप लिख दो ये बातें। द क्वेश्चन इज हम्म। नॉट अबाउट माई फेम, द क्वेश्चन इज दैट कि मुझे जो मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ उसका रिकॉग्निशन अगर वो ले रहे हैं तो मुझे उससे हम्म। प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो उसमें कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। जी। अगर वो सही जगह कंट्रीब्यूट करें तो ले लें कंट्रीब्यूशन, ले लें वो उसका, क्योंकि मेरे सीनियर है वो, मैंने उनसे भी सीखा है बहुत कुछ। हम्म। ले लें उसका श्रेय ले लें, लेकिन वो कुछ उसमें कंट्रीब्यूट तो करें। क्वेश्चन ये है कि वो कंट्रीब्यूट भी नहीं करे। जैसे हाँ। उसका एपैथी, एपैथी है, स्लो वर्क कल्चर है, तो हमारे, आप वो स्टैंड लो। मैं तो कहता हूँ मत दो हम्म। श्रेय। हाँ ये कह जी। रहा है ना श्रेय मुझे मिलना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ मत मिले श्रेय, हाँ। लेकिन आप कंट्रीब्यूट तो कर दो। हम्म। हाँ प्रॉब्लम सर। ये है कि प्रॉब्लम ये है कि आप एथिक्स के आंसर लिख के सिविल सर्वेंट तो बन जाते हैं, लेकिन बाद हम्म। में आप वही वर्क कल्चर को प्रमोट करते हैं, फॉलो करते हैं। जी। फिर एक बार वक्त आता है जब आपका घड़ा भरता है, फिर कोई स्कोप नहीं, फिर आप जो है बड़े बड़े वकीलों को लेके या लीडर्स को लेके भागते हैं और कोई कुछ हाँ, नहीं कर पाते नहीं सर। होगा। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, आप दे भी सकते हो। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव पे जब प्रेशर आता है तो करियर खत्म हो जाता है, सीधा बात। हाँ, खत्म। धनंजय मुंडे, हम्म। जो महाराष्ट्र में इतनी बुरी तरह से सरपंच को पीटा गया था, मारा गया उनको दर्दनाक तरीके से, जी। तो कोई प्रूव नहीं हुआ है कि मंत्री जी का डायरेक्ट रोल है। लेकिन जो बंदे थे जो पकड़े गए, वो मंत्री साहब के राइट हैंड है, वो सारे के सारे। हम्म। प्रेशर आया मंत्री जी पे, मंत्री जी को रिजाइन करना पड़ा। अब करते रहो केस, जब तक केस है तब तक मंत्री जी नहीं आ सकते। मोरल अथॉरिटी
अगर एक बात अगर आप समझने की कोशिश करो तो पॉलिटिकल लीडरशिप की तो बहुत है। जी। एमजे अकबर जब मीटू हम्म। कैंपेन में उनका नाम लिया गया तो उनको रिजाइन करना पड़ा। हम्म। समझ रहे? तो वी हैव टू ब्रिंग I want you to be a role model in terms of bringing so many unique things without fear, which we have discussed and which we have prepared for so long. जी सर। Anything else you want to convey? नो सर। Thank you very much. And these ethical case studies are the benchmark. They are the base which can help you to get into the right direction, which is the first step towards success with Ansarkari through its different programs, mentorship, and partnerships. Have a good time in your studies. Thank you very much.